Let's go, guys. Welcome to the first ever podcast of Cricket Beyond. So, we are taking the cricket game a bit out of its boundary. Okay? We know we are late in this game, but hopefully, we'll make it. So, we'll introduce ourselves. I'm Akshat. We have along with us Parth, Hi guys. and along with Here. us, we have Raj. Okay? Hi guys. All of us are currently into our what we say tech professions. Okay, one is into hacking, one is into producing new creative ideas, and one is into creating softwares. So that's a small brief background about us. So this year we are starting something new. That's a small what we say preview of the matches. We are a bit late than expected, but it's never too late. So we are beginning with our things. So let's break down the 5 matches or 4 matches that has happened till date. So first match KKR versus RCB. So Raj Park, anything on this or I mean Very disappointed with Bhubaneswar Kumar sitting out even after getting bought for 9 crores. I don't know what happened to the RCB management, but yeah, it's known for that tough choices. So extremely disappointed with Bhubaneswar Kumar sitting out. That was the only thing that I didn't like about it. Even They won the game, but even Lungi Ngidi was sitting out. and also one more thing. Any reason you feel Kunal Pandya man of the match, or it should be Phil Salt if I'm not wrong, I because of his batting, which helped RCB to a great start. I can second that, but I don't know. It was just because Pandya backed big wickets. That was the only reason I think he was the man of the match. He got out Rinku Singh, he got out Venkatesh Iyer, and also he got out Rahane. So I think he broke the partnership, two crucial partnerships. So I think that might be the only reason where they have selected him. Baki to I think हाँ he, बाउंसर डालेंगे तो फिर यही होगा ना अभी और क्या करेंगे बात तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली दोनों ने हाफ सेंचुरी ऑलमोस्ट सिमिलर रन मारा, तो फिल सॉल्ट को देते तो विराट कोहली विराट फैंस विराट यू भाई नो यार ऑलरेडी इतने ट्रॉफीज है एक ले फिर शॉट लेके बट जाएगा तो क्या हो जाएगा no, भाई that's ठीक है right. But still, कोई according नहीं एनी गेम चेंजिंग मोमेंट इन दैट मैच वेयर यू फील्ड के केआर गेम निकाल सकता था बट दे लैक्ड समवेयर मे बी कैप्टेंसी फील्डिंग या बॉलर्स के शोल्डर बहुत डाउन जैसा कुछ मतलब KKR could have done the game, but I think KKR were pretty much short in their score क्योंकि according to their batting lineup, Ajinkya Rahane was the only guy who fired up. After which it was Sunil Narayan who fired up, and when the key players were needed to fire up, I think टू Venkatesh लैप्स या एट द flopped, एंड yeah, करेक्ट Rinku Singh flopped, Andre Russell flopped, Ramandeep Singh also made just around 9 runs, 6 runs in 9 balls. सो आई थिंक उन लोग का ओवरऑल पूरा का पूरा जो बैटिंग लाइनअप था जब ट्रिगर होना चाहिए था दे गॉट फ्लॉप सो आई थिंक दैट वाज द ओनली बिग रीजन आई थिंक कि बिकॉज दैट वाज द ओनली की रीजन आई थिंक फॉर देयर लॉस बट आई एम प्रीटी मच backing Ajinkya Rahane's captaincy that he'll for 100% surely bounce back because he knows how फॉर श्योर वो तो उनका माइंडसेट ही उनका वैसा है माइंडसेट अनदर लेवल का है भाई तो नेक्स्ट रहाणे के तो पे मुझे पूरा भरोसा है बट अपार्ट फ्रॉम कृणाल पंड्या आई थिंक the best part about the RCB bowling lineup I saw is Josh Hazelwood. If you see 4 ओवर में 22 रन देके 5.5 के इकोनॉमी से उसने 2 विकेट निकाले हैं उसमें he bowled around 16 dot balls so that was a something you know ऑलमोस्ट 3 ओवर मेडन निकाला है मतलब उन्होंने yeah ऑलमोस्ट that was only the thing that I think that was eye catching for me. so we आई फील created the के pressure and Kunal got an advantage of it we can say Exactly. that Yeah, that's what happens हाँ in cricket. यस सो आई आल्सो second फील कि second केकेआर match ने of RCB against सिलेक्शन किया होगा CSK इश्यू हो सकता है hmm KKR में selection कि केकेआर they should have played Enric Norkia instead of Spencer Johnson. yeah, that it was was उनके not पास था नॉर्किया था उनके पास, सो बेंच agree. किया उसको. नहीं कोई ना ठीक है
आरसीबी का अपकमिंग मैच सीएसके के सामने, सो कॉल्ड राइवलरी अगेंस्ट अ टीम जिसके पास 0 ट्रॉफीज है, अगेंस्ट अ टीम जिसके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज है, 2 अलग से ट्रॉफीज है. So और that what will do be we a very say? exciting match to watch out for. I think everyone is looking for that. आज मैं आरसीबी का यूट्यूब वीडियो देख रहा था. मतलब हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग तीर मारने वाले, बट लगता नहीं है कि Let's hope for. कर पाएंगे. I know कि देखते हैं. there are a lot of CSK fans in might be probably watching like us. So देखते हैं. हम सब तो CSK के ही फैन है, तो देखते हैं. Let's दूसरे मैच के ऊपर जाते हैं. क्या बोलते हो? दूसरे मैच SRH वर्सेस RR. एसआरएच वर्सेस SRH आरआर. वर्सेस RR. क्या मैच था भाई. रावण, सब रावण रावण भाई, भर क्या के बैटिंग भाई. किया है भाई SRH के बैटरों ने भाई. मार मार के भाई. ऐसा ऐसा लग रहा था बैटिंग ही खत्म नहीं हो रही है, मतलब भाई वन साइड एक के पे. बाद एक, एक के लास्ट बाद एक. लास्ट 3 ओवर में गलती से अगर वो विकेट नहीं जाते ना, 3, तो मुझे लगा 320 भी बन जाता था. जो हिसाब से बैट चल रहे थे वो लोग के, लास्ट 3 से 4 ओवर जो स्लो हो गए वो लोग. मैं खाली वेट लास्ट है कर ना. रहा हूँ कि SRH की टीम वानखेड़े पे और अहमदाबाद. चिन्ना स्वामी में. चिन्ना स्वामी तो फिर भी ठीक है, बट वानखेड़े और अहमदाबाद में जब खेलेगी भाई, फॉर श्योर 300 पार होगा, फॉर श्योर. बोल्ड प्रेडिक्शन. और सामने चिन्ना स्वामी मार पाएंगे 300 पार हमारे आरसीबी के बंधु. आरसीबी के बोल नहीं सकते भाई. अगर फिल सॉल्ट चला तो आरसीबी शायद मार भी ले, बट विराट भाई है. 300 तो बहुत दूर है आरसीबी के बहुत लिए, आई फील. आरसीबी के लिए, क्योंकि 300 होगा तो आई अब थिंक विराट भाई विल लुक फॉरवर्ड टू मेक हिज सेंचुरी फर्स्ट रादर देन चेजिंग. तो कोई नहीं, मतलब बट राजस्थान डिड प्रीटी मच गुड. ठीक है, राजस्थान ऑलमोस्ट ने बहुत अच्छा नॉट. बैटिंग किया, बट या आई थिंक ईशान. रियान पराग शुड हैव स्टेड मे बी. इफ मतलब आई अंडरस्टैंड प्रेशर में था वो, Yeah, बट but the only thing that I felt was bad about the RCB team was that their top three batsmen whom they counted on, that is Jaiswal, Parag and Nitish Rana, तीनों तीन फ्लॉप हो गए. तीनों तीन का मिलके भी 15-16 रन नहीं हो रहा था. And the only thing I felt bad was कि there was no need for Riyan Parag to be one down on the order, because अगर आप देखें तो उसने RR के लिए लास्ट टाइम भी वो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करता था, बट फिर भी उसने आके पता नहीं, आई डोंट नो क्या थॉट प्रोसेस था, बिकॉज जनरली नीतीश राणा इज अ वन डाउन टू डाउन प्लेयर. तो उसकी जगह वहां से उसको वन डाउन से नहीं हटाना था. दैट वाज द ओनली कंसर्न आई वाज हैविंग कि अगर वो वन डाउन पे रहता दैट वुड हैव बीन ग्रेट अपॉर्चुनिटी देन. बट तो लोग दे हैव फाउंड वेरी गुड थिंग्स इन शुभम दुबे. बहुत अच्छा आई थिंक प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहा है अभी तो, जो हिसाब से उसने बैटिंग की है. हेडमायर ने बैटिंग की, जुरेल ने वन साइड बैटिंग की है. आरआर के लिए तो आई जस्ट फील बैड बिकॉज जॉस बटलर को रिटेन करना चाहिए था, वरना आई थिंक द आरआर आईपीएल की न्यूजीलैंड है. मेरे को तो ऐसा फील होता है कभी कभी. आरआर का पता नहीं मुझे, बट आई आई फील फॉर संजू सैमसंग, ही डिजर्व्स द ट्रॉफी, बट देन टू मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके रिटेंशंस में थोड़ा बहुत इश्यू है. जो हिसाब से जोफ्रा आर्चर को मारा है भाई साहब, खतरनाक भाई. 4 ओवर और 76. बोल्ड स्टेटमेंट, बट आई फील लास्ट 1 ईयर से या 1.5 ईयर से उसको देख रहे, ज्यादा ही ओवररेटेड प्लेयर लग रहा है मेरे को तो. हो सकता है, मतलब आई कंसिस्टेंटली नहीं खेला है ना, आई फील मतलब टेस्ट इन आउट ही रहा है इंजरी की वजह से. टेस्ट मैच इज द ओनली फॉर्मेट which he should play. I feel personal opinion है बाकी. एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वो मैच का, वाइट बॉल में वो चल नहीं रहा है. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वो मैच का ये है कि तुषार देशपांडे 4 overs 44, 3 wickets, 11 इकोनॉमी, दैट इज द लोएस्ट इकोनॉमी जिसको सीएसके ने बना के भेजा है. तुषार भाई वहां पे राज कर रहे हैं अभी. कोई ना. और चलो थर्ड मैच. कोई बेटर नहीं था, बट एमआई वेरी एल ग्रेट. क्लासिको. एमआई वर्सेस सीएसके. सीएसके भाई. आई वो as you MICSK वाज लाइक अ टिपिकल हाँ चेपॉक मैच, टिपिकल मैच. हाँ, टिपिकल मैच था. एक ओवर में मैच एमआई जीत रहा है, एक ओवर में सीएसके जीत रहा है. लास्ट ओवर तो पता ही नहीं चल रहा कौन जीत रहा है भाई. नहीं भाई, मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट मैच का लगा धोनी भाई. क्या स्टंपिंग किया है भाई. 0.12 seconds, क्रेजी भाई. आई हैव नेवर एवर सीन एनीवन so young and so fit behind the stumps. All the अरे trophies, बराबर है. but yeah, but still I am not happy with the CSK batting lineup. I don't think so कि ये batting lineup एवरीवन गॉट आउट हिटिंग रैश शॉट्स. मतलब exactly. वो यस. जरूरत नहीं थे उनको, बट ठीक है. ऋतुराज आफ्टर हिटिंग 50, मतलब वो सिंगल्स डबल्स में अच्छा निकल रहा था, उसने वो शॉट खेल दिया. कोई नहीं, ठीक है.
कुछ नीड फिर नहीं था बाद में एक्चुअली मेरे। शिवम दुबे ने तो भाई डिसअपॉइंट कर दिया मेरे को। चलो एक ही मैच हुआ है, बट ठीक है। But only thing that I'm feeling concerned is that CSK is not having any choices. अगर आप देखो तो राहुल त्रिपाठी है उनके पास, उनको दीपक हुड्डा है, शिवम दुबे है। राहुल नहीं, त्रिपाठी ने डिसअपॉइंट किया राहुल है, त्रिपाठी जैसे I think एक्सपेक्टेशंस था। सैम consistently failing since 1.5 years. Even सैम करन का जो राज बात कर, सैम करन डिसअपॉइंटेड द मोस्ट, क्योंकि वो जब भी आउट हुआ तब इट वाज लाइक कि यू नीडेड रन अ बॉल या 7.5 के रन रेट चाहिए थी, इजीली अचीवेबल था, और वो टाइम पे वो 6 मतलब रेस शॉट मारने गया, उसमें बोल्ड हो गया, तो दैट वाज सेमी डिसअपॉइंटिंग फॉर ओवरटर्न मी। उनको रिप्लेस कर सकते हैं या? हाँ तो वही मतलब दैट वाज द ओनली कंसर्न मेरे पास, क्योंकि बैटर्स अगर मैं देखने जाऊँ ना तो सीएसके के पास दूसरा बैटर बैटिंग चॉइसेस में है एंड्रे सिद्धार्थ और शेख वो रशीद। अच्छा है। तो आई थिंक एंड्रे सिद्धार्थ का एक सीएसके ने आज ही वीडियो डाला था, मैं देख रहा था कि सीएसके बोल रहे थे हु इज दिस बैटर, आई थिंक ही वाज एंड्रे सिद्धार्थ जो बैटिंग कर रहा था, आई थिंक उसको या चांस मिलेगा। बट सिमिलर टू रचिन रविंद्र, या भाई भाई रविंद्र twins ऐसा लगते हैं नेचर है दोनों। उसका। बाय बाय, यस। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि सीएसके बिंग सीएसके जब तक प्लेयर्स को 4-5 अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी टीम चेंज होने वाली है। सो सीएसके इज नोन विजय फॉर बैकिंग विजय यंग शंकर भी प्लेयर्स। है गाइस, विजय शंकर भी है। विजय शंकर द 3D प्लेयर, 3D प्लेयर्स, 3D प्लेयर विजय I शंकर। don't know what is happening, but still I am backing that CSK है तो I think CSK शिवम दुबे will step up in a couple of games। एक दो गेम्स में रविंद्र ने ऑलरेडी स्टेप अप करना स्टार्ट किया है, गायकवाड़ करेगा तो आई थिंक कि वी आर प्रीटी मच गोना सी अ वेरी गुड टीम ऑफ CSK। MI आई थिंक विल बी अ वेरी गुड स्पॉट बिकॉज MI में जैसे ही जसप्रीत बुमराह और एक बार हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या। तो आई थिंक उनका भी बहुत अच्छा शॉट है। The best part about CSK is Vignesh Puthur, guys. What a player, man. मुंबई मुंबई नॉट सीएसके। मुंबई सॉरी, बेस्ट थिंग अबाउट मुंबई इज विघ्नेश पुथुर। क्या बंदे ने बॉलिंग किया है भाई, वन साइड सेट और ऋतुराज फ्लाइट डिलीवरी वो डाल भी दी। एक भी ऐसा मतलब प्रोफेशनल गेम नहीं खेला है। इनएक्सपेक्ट T20 एक भी नहीं खेला है, फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला है। व्हाट अ फाइन भाई, मुंबई की सच में स्काउटिंग टीम तो स्काउटिंग टीम, वन हेड्स साइड है ऑफ। भाई। ऑल दो वी आर Hopefully we see him in Indian team and perform same. Maybe I feel उसको और 13 matches देखते, chance मिले ना मिले, let's see. But I feel he should get chances and कौन he'll विघ्नेश? आई perform ऑल्सो well. फील कि मिलेगा, बिकॉज उनके पास उतने विघ्नेश को स्पिनर्स भी नहीं है, Hmm. मुंबई विघ्नेश के को पास फिर नहीं, विघ्नेश को स्पिनर्स डेफिनेटली भी नहीं है। बिकॉज मुंबई के पास जो फ्रंट लाइन स्पिनर है दैट इज मिचेल सेंटर है, दूसरा जो स्पिनर आता है दैट इज करण शर्मा, तो मुझे करण लगता है शर्मा। Vignesh Puthur is going to get chance for all his matches. I am bit worried about सत्यनारायण राजू, क्योंकि उस बॉलर होके उसको एक ही ओवर मिला है, इकोनॉमी उसका 13-14 का कुछ था। बट आई एम होपफुल दैट उसको भी एक आधा गेम ट्राई मिले, बट उनके पास बॉलिंग का तो लाइन था। बट आई एम जस्ट वेरी कंफ्यूज कि चीपो का जो पिच था दे न्यू दैट इज गोना टर्न अ लॉट, तो देयर वर चांसेस कि एक बार बोल्ट को निकाल के मुजीबुर रहमान को ले सकता था मुंबई, बिकॉज दैट वुड हैव बीन हेल्प टू देम। बिकॉज ट्रेंट बोल्ट इज एनी विच वेज यू नो अप फ्रंट 3 ओवर डाल के देता था, बट मुजीबुर रहमान वाज समवन हम लोग अगर सोचते हैं कि मुजीबुर रहमान को लेते हैं तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस आई थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई को वहां थोड़ा सोचना चाहिए था, बट नेवरदलेस मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट से इन्होंने 3 ही ओवर डलवाए एंड ही वाज विकेटलेस, सो आई थिंक कि मुजीबुर रहमान वुड हैव बीन अ गुड चॉइस। next match LSG versus DCA, क्या मैच fiery match, भाई एपिक fiery एपिक match। मैच, व्हाट अ मैच। वो टिपिकल आईपीएल मेरे मैच मेरे था। तो आंख लग गई थी मेरे को, मेरे छोटे भाई ने उठा के, भाई जीत गया डीसी भाई। इतना टिपिकल एपिक आईपीएल मैच। मैच था। व्हाट अ मैच भाई, आई हैव नेवर सीन कोई अ बोलेगा आशुतोष। नहीं स्टार्टिंग के 6 ओवर देख के कि भाई यहाँ से डीसी जीतेगा, बट केविन पीटरसन ड्यूरिंग द मिड मैच बोल दिया जब तक आशुतोष है आई नो हम जीत जाएंगे। नहीं ही सो कॉन्फिडेंस दे आर, केविन ने बोला कोच 2 प्लेयर्स हैज। के लिए 2 प्लेयर्स को वॉच आउट करो, उसने विपिन का भी नाम लिया था और उसने आशुतोष का भी हाँ, नाम लिया था। एंड वो तो एक कंसर्न नहीं था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लाइक अबाउट द डीसी इज कि भाई वन साइड अनदर लेवल, मतलब जो बैटिंग इंटेंट दिखाया उन लोगों ने वाज ग्रेट। व्हाट और व्हाट विपराज और आशुतोष जो कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे ना, लाइक दे न्यू कि नेवर हाँ गिव अप हम लोग एटीट्यूड, नेवर लेके गिव अप जाएंगे मैच, एटीट्यूड। हम हाँ लोग भाई। मैच लेके जाएंगे। एंड देयर हैज नेवर बीन आईपीएल गेम जहाँ पे 5 विकेट जाने के बाद टीम हैज गॉन अबाउट 200 का टारगेट, बट दे वेंट अहेड एंड चेस्ड इट, सो दैट वाज अ वेरी achievable thing, but very disappointed with LSG selecting some, I don't know what was their selection, they had no frontline bowler,
एक bowling, yes. ही नहीं खेल रहे थे। मैंने अब जस्ट व्हाट डू पढ़ा। यू थिंक आशुतोष शर्मा मतलब ये वन टाइम वंडर है कि मतलब आशु विल ही परफॉर्म कंसिस्टेंट, क्या लगता है? लास्ट ईयर भी देखा था पंजाब के लिए एक दो गेम फिनिश किया था वैसे ही। सो आई डोंट थिंक सो वन टाइम वंडर होगा, बट या आई थिंक लेट्स सी, क्योंकि आई थिंक ही विल बी गेटिंग ऑल द मैचेस एट डीसी दिस ईयर। एंड डीसी का कैप्टन भी गुज्जू भाई है अपना, तो आई थिंक वो बैक तो करेगा ही फॉर श्योर। तो देख रहे हैं क्या बोलते हैं। उन्होंने तो बोला भी भाई, जब जब तक मैं कैप्टन हूँ कुछ भी हो सकता है, हाँ, ऐसा। वो हाँ, वो तो yes. कॉन्फिडेंट है भाई, वो बंदा वो कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहा है भाई कुछ भी हो सकता है, बट आई अग्री कि कुछ भी हो सकता है उसके, वो है तो कुछ भी हो बट कुछ सकता भी है। हो लो, आशुतोष शर्मा ने उसके अंदर के एमएस धोनी जगा दिया था उस दिन भाई, एकदम काम। फिर बाद में जो मारना चालू किया एक साइड से फॉर भाई। आशुतोष का बैटिंग तो वन साइड था, वो तो है ही नहीं कोई सवाल, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द एलएसजी स्क्वाड की एलएसजी भाई नॉट। एलएसजी का एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर आके, शार्दुल ठाकुर, जो ऑक्शन में अनसोल्ड लिया, ओ भाई, बट फिर अचानक बैकिंग वो रिप्लेसमेंट आया फिर भी बट स्टिल बैकिंग हिम फॉर अ टी20 मैच मेरे को नहीं लगता दैट इज कुछ विथ आवेश खान और आकाशदीप दोनों आप, मतलब एलएसडी के पास दोनों आवेश नहीं, ऑप्शंस आवेश थे। खान के आवेश बारे में मैं खान, वही बोल रहा हूँ, आवेश खान वाज इंजर्ड, ही विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट मैच। बट आकाशदीप था। आकाशदीप था उन लोगों के पास, और मैं वही बोल रहा हूँ, और अगर आप लोग देखते हो तो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर हंगर गेकर को सीएसके ने खिला रहा था एज अ न्यू बॉल बॉलर। तो दे कुड हैव आल्सो ट्राइड हंगर गेकर, आई डोंट नो मतलब उन्होंने क्या स्क्वाड क्या सोच के बनाया था। एंड देयर वाज मतलब इतना सारा बॉलर इन्होंने खिलाया, इससे अच्छा दे कुड हैव इवन गॉन विद अब्दुल समाद। अब्दुल समाद वाज इन अ सब्स्टिट्यूट, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर एसआरएच, अगर देखते हो तो लंबे लंबे छक्के मारता है बंदा, कश्मीर से आया था, आया हुआ प्लेयर है वो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग कि मुझे पता नहीं चल रहा उनका डू यू सिलेक्शन। थिंक एलएसजी ने चोक किया कि डीसी लकी था, मतलब आई एम नहीं, आई एम फीलिंग 100% एलएस गेम, डीसी इज आई नॉट। आई ऑल्सो फेल्ट के हाँ, एलएसजी बॉलिंग भी प्रॉपर नहीं की, लाइक बिश्नॉय ही वाज बॉलिंग थर्ड 18th ओवर आई गेस, लास्ट थ्री बॉल्स 4-6-6 गया था एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली बॉलिंग द सेम लाइन ऑल द थ्री बॉल्स, इट वाज आउटसाइड ऑफ स्टंप। लाइक आशुतोष को पता था वो क्या मार रहा है। मुझे तो ठीक बहुत है, लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट मैच इनका। देखते हैं एलएसजी का, बट आई एम वेरी डाइसी फॉर एलएसजी टू बी इन द टॉप फोर। बॉलिंग आई थिंक हाँ, बॉलिंग पंत, चेंज करना पड़ेगा भाई उनको। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट पंत फ्लॉप हो गया भाई। पंत गोइंग ऑन जीरो इज अ रेयर साइट फॉर मी, मतलब क्या, 5 बॉल खेल के बंदे ने, 5 ही बॉल इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट, या मतलब यस यस, वो भी एक ही ओवर के डॉट की ऑलमोस्ट, कुलदीप यादव के 4 बॉल मुझे आई गेस मुझे डॉट किए थे। व्हाट इस आई बंदे को तुम रोज नेट्स में खेलते हो व्हाट और मतलब व्हाट ऑलमोस्ट आई एवरी डे। नहीं, व्हाट आई फील इज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पंच शुड ओपन द इनिंग्स विद मिचेल मार्श, बिकॉज उसको दो ही फील्डर बाकी यस थे, उसको यस, आके आई लेने में फेल्ट ही वाज अंडर चाहिए। प्रेशर, ही वाज अंडर प्रेशर, पता नहीं क्या था, प्रेशर कुछ था क्योंकि ही उसका नहीं, नेचुरल गेम बिकॉज तो नहीं था। तू समझ ही नहीं रहा, प्रेशर कुछ था नहीं, इट वाज द फर्स्ट इनिंग्स का उनका बैटिंग था ऑलरेडी, मार्च ने और मार्केट ने हाँ, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, पूरा अगले एंड से मार रहा था, तो उसके ऊपर प्रेशर कुछ होने ही नहीं वाला था। द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट बैड वाज व्हाई इज एडन मार्करम ओपनिंग द बैटिंग, उसने कभी ओपन किया ही नहीं है एडन मार्करम ने। इससे अच्छा पंत को खुद ओपन आना चाहिए, बिकॉज जस्ट टू फील्डर्स आउटसाइड है, वो खुला खुला उसके शॉट्स खेल यस। सकते हैं, शॉट्स और उल्टेगा तभी रन हो सकते हैं, और एडन मार्करम शुड कम डाउन द ऑर्डर। आई डोंट नो व्हाट द एलएसजी मैनेजमेंट इज डूइंग। मुझे लगता है जब तीन और चार समवेयर तब गोयन का बम्बू डालेगा कंफर्म भाई। मुझे मुझे तो ऐसा भी लगा कि पंत कुलदीप को पिक ही नहीं कर रहा था। लाइक 2-3 बॉल उसने जिस हिसाब से या डॉट तो किए। पंत की वीकनेस कुलदीप भाई को पता है, या तो बट पंत पार्थ को के ऐसा पॉइंट के था साथ एक ओवर निकाल लूं फिर अग्री मारता करता हूँ, पार्थ के पॉइंट के साथ मार्करम के बदले पंत को ऊपर लाओ और इंक्लूड एक्स्ट्रा बॉलर है, शमर जोसफ है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, हूँ। मतलब आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। एंड प्रिंस यादव के बदले एक बैट्समैन लेके आओ, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अब्दुल सामद है मैं तो वही बोल रहा हूँ। या हंगर केकर है, हंगर केकर भी अच्छा ऑप्शन है। The only thing disappointing for me was that कि भाई इतना मतलब when the team is so set, Pant had to come and fire it, but Pant lost everything from there, और that is the reason उनका जो स्कोर बनना था नहीं बना। And with that bowling lineup, if they are going in, उनको 240 भी they will not be able to chase. If you see Prince Yadav, दिग्वेश राठी, शाबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर,
and Ravi Bishnoi. You can just see only two recognized bowlers there. That is Shardul Thakur and Ravi Bishnoi. एंड रवि बिश्नोई. हाँ, ये बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर आप खेल रहे हो 240 रन भी कमी पड़ने वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई नई चीज थी. बट आई वाज एक्सट्रीमली शॉक टू सी कि भाई ये बहुत मुझे बहुत शौक ये चीज का लगा कि उन लोग ने आकाशदीप को नहीं खिलाया. उन लोग ने आवेश खान तो चलो इंजर्ड था. अब्दुल समद वो सेटिंग आउट. हंगार गेकर इज एक्सपीरियंस प्लेयर, उसने सीएसके के लिए खेला है, ही वो सेटिंग आउट. तो दैट वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. बट एनीवेज लेट्स सी नेक्स्ट मैच क्या होता है, क्या सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के साथ वो लोग आते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, दैट इज बिटवीन पंजाब एंड जीटी. श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर वन साइड गाइस. पता नहीं उसको तो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट छीना हुआ है जो सॉरी लिया है भाई, वो सब दिखाएगा उसको कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ. सुपर बैटिंग, वन साइड बैटिंग श्रेयस अय्यर. और बहुत सही स्पेशल मेंशन टू द ओपनर वो प्रियांश आर्या. प्रियांश आर्या. भाई 47 पे आउट हो वो गया. वन साइड. वन साइड. इट वाज अ वेरी, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि नहीं मारेगा, बट वंस ही वाज सेट ना, वो उसके प्रॉपर ड्राइव क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था. है. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था. नहीं टेक्स्ट बुक, प्रॉपर टेक्स्ट बुक. प्रियांश आर्या सुपर चॉइस भाई. मैं एकदम इम्प्रेस हो गया प्रियांश आर्या की बैटिंग से. सुपर शॉट. शशांक सिंह ने जो लोअर ऑर्डर में आके काम किया भाई, क्रेजी काम भाई. उसको जो हिसाब से बैक किया था किंग्स 11 पंजाब, रिटेन. a very great player. I think he has proved himself to be that. Again disappointing with Maxwell. पता नहीं, Maxwell is slowly started to become a liability for everyone. को क्या पता पहले ही बॉल में आके रिवर्स स्विप मारने, वो भी वो नॉट आउट है फिर भी he is not confident. फर्स्ट ही बॉल. I don't know what he was thinking there. So कोई ना, थोड़ा disappoint. देखते हैं. कितना क्या लगता है कितने चांस देंगे मैक्सवेल को? भाई अगर ऐसे ही चला, आई डोंट थिंक 14 मैचेस तो match. खिलाएंगे. नहीं, जॉश इंग्लिश है उन लोग के पास. नहीं, मैक्सवेल अंधों में काना राजा बैठता है. बट कितने मैच देखेंगे ना, मतलब एक भी मैच में ही सब मैच में अंधा ही रहा तो फिर क्या करोगे? ऑप्शन कौन है? ऑप्शन जॉश इंग्लिश है. जॉश इंग्लिश है भाई, सुपर फॉर्म में चल रहा है वो. एक एरॉन हार्डी करके बैटिंग राउंडर है और वो भी उन्होंने लिया है. तो हाँ, एरॉन हार्डी है. हार्डी है, वो भी बैठा है बाहर. आई डोंट थिंक सो उसको ज्यादा मैचेस मिलने वाला है. नेहाल वडेरा है भाई. ही इज प्रूवन फॉर मुंबई इंडियंस. कितनी बार सबसे ये ऑल्दो पीबीके है 1-8. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेहल वडेरा हैज टू बी इन आउट एज अ सब्स्टिट्यूट इज अ वेरी बिग थिंग. बट मुझे लगता है नेहल वडेरा विल बी यूज्ड व्हेन द बैटिंग फ्लॉप्स अप. अगर समझो श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो गया फॉर इंस्टेंस, आई थिंक नेहल वडेरा को लेके आएंगे. वहां पे जीटी का बैटिंग क्रेजी बैटिंग. साई सुदर्शन वन साइड बैटिंग बहुत अच्छा, बहुत मस्त बैटिंग किया उसने कल. जोस बटलर बहुत अच्छा बैटिंग करा था. मैं तो मुझे शमार जोसेफ का बैटिंग बहुत. शर्फेन रदरफोर्ड थर्ड क्लास बैटिंग भाई. एक ओवर में 17-18 रन करने के बंदा पूरा बटलर को स्ट्राइक नहीं दे पा रहा है, ऑफ के बार का बॉल नहीं खेल पा रहा है. हेड्स ऑफ टू रिकी पॉन्टिंग भाई. इफ यू सी, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि भाई शर्फेन रुदरफोर्ड इज कमिंग इन, वहां से डीसी ने विजय कुमार वैश्य को इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आया. और भाई वो बंदा इज कंसिस्टेंटली बॉलिंग ऑफ बॉल कंसिस्टेंटली भाई. इवन आफ्टर बॉलिंग 3 वाइड्स इन ओवर, दैट गाइस जस्ट कंसीडिंग 2 रन्स भाई. व्हाट मतलब क्या बॉलिंग है उनका. और रिकी पॉन्टिंग हेड्स ऑफ है भाई उसको. मतलब 14-16 रन मारा उसके पहले के ओवर में, उसके बाद भी वो बंदा वही लाइन पकड़ के डाल रहा है. इट वाज नेवर ओवर फॉर जीटी. आई वाज जस्ट सो सरप्राइज्ड बाय शर्फेन रुदरफोर्ड कि भाई वो बंदा ही इज नॉट एबल टू रोटेट द स्ट्राइक. एंड जीटी ने क्या सोच के उसको भेजा मुझे अभी तक नहीं पता, बिकॉज जीटी के सब्स्टिट्यूट में देयर वाज ग्लेन फिलिप्स वो सिटिंग आउट. ग्लेन फिलिप्स जब बाहर बैठा है तो what is the need to send Sharfin Rutherford? Because Glenn Phillips is a player who plays test match for you, who plays ODIs for you, who plays T20. मैं कल देख रहा था लास्ट वो बंदे के 6 में से 5 मिस हो गए स्विंग. मैं वही चीज से डिसअपॉइंट समझ ही नहीं रहा है उसको. जीटी के हाथ का मैच था ये. जीटी कुड हैव नेवर एवर लॉस्ट. बाउंड्रीज नहीं गए उनके. मुझे तो वही समझ. बाउंड्रीज चाहिए भी नहीं थी, वो बाउंड्रीज हिट कर रहा था. बट इफ यू सी, पंजाब 11 रन से जीता है, आउट ऑफ विच लाइक रदरफोर्ड ने कितने डॉट किए. हाँ, आफ्टर 16th ओवर देयर वर 18 डॉट बॉल्स. मतलब 3 मेडन ओवर चला गया. आप समझो भाई, अगर उसमें थोड़ा रोटेट करते ना और मैं तो गेम था.
मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये बात का लगा कि शरफेन उतरकौर सामने जो बटलर सेट है 50 रन करके खड़ा है, उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही है। एंड वो बंदे की जब बैटिंग आ रही है, दैट्स व्हेन द ही हैज लॉस्ट हिज टच बिकॉज़ ही वाज स्टैंडिंग एट नॉन स्ट्राइक फॉर लाइक 10-12 बॉल्स। क्या सेंस बन रहा है भाई? तेरा सामने सेट बंदा खड़ा है तो तू ही सब मार के लूटेगा। एंड द वर्स्ट पार्ट, इससे भी गंदा पार्ट मैं अगर बताऊंगा तो ज्यादा मुझे दुख ये बात का हो रहा था कि अंदर, मतलब ये बंदे के बाहर आने के बाद अंदर राहुल तेवतिया बैठा है, शाहरुख खान बैठा है, और शरफेन रुथरफोर्ड इज ब्रॉट अप। व्हाट इज द नीड? मुझे वही नहीं पता चल रहा है अभी भी जीटी ने क्यों ये स्टेप लिया, मुझे पता नहीं चल रहा। बिकॉज राहुल टेवटिया हैज अ कैपेबिलिटी कि भाई वो 4-5 छक्का मार सकता है। शाहरुख खान ने लास्ट बॉल पे आके जो लंबा छक्का मारा ऑफ के बाद, तो ये चीज करने की नीड ही क्या थी? आई डोंट नो, बट आई एम, मैं पहले से ही मतलब बिफोर द आईपीएल स्टार्ट मैं तो आपको बोल ही रहा था कि भाई शुभमन गिल कैप्टनसी मेरे को पूरा डाउट है। एंड विद शुभमन गिल भाई कोई मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और उसके साथ वहां पे हेड कोच आशीष नेहरा, तो इट्स जस्ट कुछ बोल नहीं सकते भाई, वॉट एवर इज गोना हैपन। बट या दैट वाज इट। मतलब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा कि जीटी बीइंग सच अ ग्रेट टीम, मतलब इतना फालतू डिसीजन लिया उन्होंने, मुझे नहीं समझा अभी। बिकॉज राहुल टेवटिया 6 हिटर, शाहरुख खान इज अ 6 हिटर, ग्लेन फिलिप्स सिटिंग इन सब्स्टिट्यूट स्टैंडिंग शर्फेन रुदरफोर्ड, अगेन अ वेरी बैड चॉइस। सो ओवरऑल आई थिंक जीटी कुड हैव डन बेटर विद दैट। आई थिंक यही था मेरा तो पास वही मैच, ना, 5 मैच आज का मैच शेयर किया हमने। टॉस हो आज गया। का मैच है आरआर वर्सेस केकेआर का मैच है। केकेआर ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया है, एंड आई थिंक देयर हैज बीन अ चेंज इन द स्क्वाड। आई थिंक कि नो मोइन अली, नारायण। सुनील नारायण इज आउट एंड मोइन अली इज टेकिंग हिज प्लेस, एंड आरआर में आई थिंक हसारंगा इज कमिंग इन एंड फारूकी हैज बीन सेंट आउट। तो हम्म। दैट इज अ गुड चॉइस, हसरंगा को लाना आई थिंक अच्छा चॉइस है। वैसे भी फारूक की वाज नॉट परफॉर्मिंग, बट इट्स जस्ट बीन अ मैच यार, हाउ कैन यू एक मैच में इतना जज करना? मुझे तो बट हाँ, एक मैच में हम किसी का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सेटल होने दे, लेट्स सी 2-3 मैच होने देते हैं, फिर हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, हाँ भाई। बट हसरंगा आपको थोड़ा बैटिंग भी लाके दे सकता है ना, विच फारूक असरंगा की। भाई अलग ही है वो भी। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट पता है क्या मैं देख रहा था? कि संजू सैमसन is playing in a side as a full-time player but still captaining is Riyan Parag. So हाँ ओ मतलब या मुझे अभी ही भी इज नॉट समझ में आ रहा इवन। है, रियान पराग एज एन as a कैप्टन। full-time player and the captain is still Riyan Parag. Is I think I don't know what the management is looking at, but I personally am feeling that Riyan Parag might be feeling that might be feeling the heat of the captaincy there because he's not so experienced and to take some tough calls on the field. मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है कि रियान पराग को हीट थोड़ा फील हो रहा होगा ऑन द ग्राउंड। बाकी आई डोंट नो, बाकी आई थिंक लेट्स सी क्या होता है आज के what मैच happens में। आज, I think uh, what do you think about the मुझे play? आरआर लग रहा है। RR winning it? आई फील आरआर इज विनिंग इट। आई थिंक वो थोड़ा स्टेबिलिटी आरआर में ज्यादा अच्छा है, with no Narayan in KKR. That's the reason. Because last season, I guess Narayan had hit a century against RR, if I'm not wrong. RR क्या लग रहा है? अक्षत क्या लग रहा है भाई? हाँ, दिल तो आर बोल रहा है, बट पता नहीं। तुम दोनों RR बोलते तो आई विल बी सिटिंग विद KKR देन। लेट्स सी, मुझे अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी पे ज्यादा भरोसा है। यार एक से आई डोंट नो, मुझे तो सही है। बिकॉज मोइन भाई, a CSK player again is coming in, so I think he will definitely create an impact. 100%, बट आई फील आज यशस्वी जायसवाल शुड प्ले, आई मीन ही विल परफॉर्म। गट फीलिंग ऐसा बोल रहा है, लेट्स सी। फॉर श्योर देखते हैं क्या है, बिकॉज आई थिंक कि वरुण चक्रवर्ती भी साइड में है अपना, और सामने बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। तो मुझे तो KKR फील हो रहा है। मजा आएगा। मजा आएगा, गेम देखते हैं। सो लेट्स वॉच आउट फॉर दिस अपकमिंग गेम एंड देन गेम के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट क्या होता है एंड Yes. अबाउट द टुमारोज प्रीव्यूज एज वेल। डन है। डन, ठीक है, लेट्स दैट्स मीट इट गाइस फॉर बाय द बाय फर्स्ट गाइस, एपिसोड। नाइस टॉकिंग विद यू। चलो मिलते हैं इन नेक्स्ट Please do प्रीव्यू। like, follow, subscribe our channel and also our Insta handle as well as the Facebook page as well, guys. All the पीस details आउट। will be shared in the link below. Bye, guys.
बाय 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 गाइस।